Times of India group. Have you heard about Times of India? No? Do you read newspapers here? क्या आप लोग अखबार पढ़ते हैं? आपके घर में अखबार आता है? आपके पेरेंट्स पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते? क्यों नहीं पढ़ते? आता नहीं है? नहीं, हमें अवेलेबल नहीं है मैडम आजकल। Not available. Actually, Times of India is one of the oldest newspaper of India. So I come from that group. And today we are here to discuss about the Indian Army's role in nation building. हम लोग बात करेंगे हमारी आर्मी के बारे, जो हमारे देश के लिए क्या क्या करती है। Firstly, I would like to greet Madam Komali Mazang ma'am. She is the chairperson of the school, Elementary Residential Girls School, New Khamdu, in Changlang district, Arunachal Pradesh. And I would like to greet Dr. K. Mazang. She is the medical officer of this area. Ma'am, we want to know a little bit about this school. थैंक यू। सबसे पहले मैं हमारी आर टी मौसम मेमोरियल सोसाइटी के अंदर में जो स्कूल चलते हैं, एलिमेंट्री रेसिडेंशियल स्कूल लोकेटेड एट न्यू खामदू की ओर से तथा मैं व्यक्तिगत और से भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की मैडम अरोड़ा को और इनके साथ जो भी लोग आए हैं इन लोग को हमारे इस स्कूल में वेलकम करती हूँ, हार्दिक स्वागत। तो मैम ये to be very frank, this is nothing but a part of the government's policy for empowering women and also to bring a change in the society through our women. So when we talk about a woman, obviously it comes education, unless one is educated. जब तक एक महिला पढ़ी लिखी नहीं होती है तब तक तो हम लोग सरकार जितने भी पॉलिसी लाए, प्रोग्राम लाए, इट इज नो मीनिंग। इसीलिए ये स्कूल residential school is a part of government policy for bringing a change in the society, and also especially in the border state like Arunachal Pradesh, this is very important. And Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya is one very important organization, important educational institution given for the upliftment of the woman, and it was initially not there. Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya was given in the backward education, backward blocks of Changlang district along with other districts. Then it was my personal efforts, and on my request I was taken to Delhi, where I had the privilege of interacting with the authorities. Then I said, when we are not given, then we should be helped with, and that is how we got 2 elementary residential school for girls. आपको के लिए, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए 2 स्कूल लाए और उसमें एक विजयनगर, एक ये न्यू खमदू लोकेटेड। तो 2005-06 आई होप इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग 2007-08 से हम लोगों ने शुरू किया और विजयनगर लकीली एक साथ में शुरू किया, लेकिन वो इट वाज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। सो दिस ईयर अगेन वी हैव बीन ब्लेस्ड विद getting this chance to serve, and there we are running. And here the capacity is 100 students, girls, and girls are brought from the very interior villages where there is no proper school. If there is a school, then also there is no residential and there is no environment to learn and to ensure that we are delivering a better or quality education. So we are bringing children here, they are staying. When teachers are though they are meagerly paid, they are also put here and they stay with the girls. They have got support staffs like cooks, chokidar, PM. So with help of this staff and these personals, we are running, and we have almost completed 14-15 years, and this is up to class 8 or elementary level. Hopefully in the next year again we will have to struggle. तो उसके लिए आप लोग का भी रिजल्ट अच्छा होना जरूरी है। और लाइक बाहर से है, जैसे आप आई मैम, ये स्पेशल प्रिविलेज टू स्पीक आउट, इंटरेक्ट। इट मे नॉट बी रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट मैटर ऑफ टुडेज प्रोग्राम, बट for your consumption so that you can also help us out in
carrying our messages and also focusing on our problems and what small efforts we are making at our own level, that you will be able to help us out. This is what, under this organization, there is one more elementary residential school located in Vijayanagar and 3 Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya, and also 2 more government school, but it was almost closed because of certain problems, local problems. It was not functioning, but for the last 2 years we are functioning. Though you will not be able to go to Manmo, at least Nampong, I think I will be able to take you there and see with your own eyes and realize. Thank you so much. Thank you, ma'am. Madam, one of sir, my colleagues and my beloved students. तो ये मैडम नहीं है आप लोग के लिए, ये मैडम टाइम्स ऑफ इंडिया से आई है और तुम लोग का क्विज का नाम भी दिया है, बच्चा को सबको पता भी कर दिया और ये लोग का हाफिज रिसेंटली खत्म हुआ है मैडम। हाँ, अब तक प्रिपरेशन का रिसेंटली वन संडे टू गांधी जयंती टुडे इज 4। तो सबको आर्मी में मैडम बता रहे हैं, हाँ आर्मी में सबको कोशिश करना है देश के लिए योगदान करना है। हाँ, सबसे बड़ा बात है। हाँ, और साथ साथ में पढ़ाई भी करना है और खेल भी होते रहेगा, हो गया सब ज्वाइन करना है। और हम लोग अपना बेस्ट तो दे ही रहे पढ़ाई लिखाई में, और हम लोग ने 13 बेसिस को क्लास 8 से निकालते हैं 7% रिजल्ट, अरुणाचल बोर्ड क्लास 4 7% रिजल्ट। ये थोड़ा बोलने में लोग नया आदमी आने से थोड़ा बस्ती का है, थोड़ा सा इंटीरियर या थोड़ा इसकी लेकिन वो ग्रुपिंग में जवाब देने के लिए एक्सपर्ट है। सिंगल जवाब देने में थोड़ा हम लोग को भी ऐसा करते हैं, ग्रुप में आके बोलता है कुछ भी प्रॉब्लम होगा आस्ते से थोड़ा इम्प्रूव होगा। थैंक यू सर। मैं आपको 51 नोटेबल रेस्क्यू और ह्यूमैनिटेरियन रोल्स के बारे में बताना चाहती हूँ जो आर्मी ने किए हैं। एक तो था ऑपरेशन नेक राहत इन 2014 आर्मी ने किया, और ये किया था कश्मीर में, जिसमें 2 लाख लोगों को फ्लड अफेक्टेड एरिया से निकाला आर्मी ने। Then the army did the Operation Surya Hope 2013 in the north of India. यहाँ भी फ्लड्स में से 1 लाख लोगों को निकाला गया। Then Operation राहत, ये यमन एक कंट्री है मिडिल ईस्ट में, जिसका नाम यमन है। वहाँ पर हमारी आर्मी के लोग गए और वहाँ हेल्प किया लोगों का। 4,000 people were saved from there. Then cyclone ने मदद किया वेस्ट बंगाल में, and when COVID happened in 2019, वो तो आपने भी देखा होगा, कोविड जब आया था 2019 में, यहाँ भी आया था। आप लोग के घर में हुआ किसी को, या किसी को नहीं हुआ? बट हमारे वहाँ दिल्ली में तो घर में हुआ, लगभग सबको हुआ, बहुत बुरा था। बट आर्मी पीपल ने जाकर कोविड टाइम्स में भी लोगों की मदद की। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, ऑपरेशन त्रिवेणी, relief operations during cyclone in 2017, and then operation in Maldives, flood relief in West Bengal in 2000, and flood relief in Assam में भी बाढ़ आया था, उसमें भी आर्मी ने लोगों की मदद की। फिर पाकिस्तान में एक बहुत ही बुरा अर्थक्वेक आया था
2005 में, तब भी हमारी आर्मी ने उनकी भी मदद की। तो आर्मी के आप स्टैंडर्ड्स देखिए, दुश्मन की भी मदद करता है। और आर्मी पीपल ऑल्सो गिव रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी टू वुमेन, औरतों की भी बहुत वो सम्मान करते हैं। और अब आर्मी ने औरतों के लिए अपना दरवाजे खोल दिए हैं। औरतें अब आर्मी ज्वाइन करके ऑफिसर्स बन सकती हैं और एक करियर बना सकती हैं आर्मी। Now we'll talk about some unsung heroes. Heroes कौन होते हैं? कौन है आपके? भैया, आर्मी में कहाँ पे पोस्टेड है? कहाँ पे आजकल भैया? क्या आर्मी ज्वाइन करते हैं? बाद में तुमको भर्ती मिलेगा तो हाँ किसी को आना है क्या? Really good, really very good. One, two, you can start. Yes, 3, 4, हमसे बोल 5, 6, 7, 8. Stand up those who want to stand up. As a career, आप लोग आर्मी में आ सकते हैं। गर्ल्स के लिए अब आर्मी में जॉब्स भी है। पहले नहीं जॉब वेरी गुड। आंटी का आईटी बाहर की कंट्रीज में इंडिया अपनी पीस कीपिंग फोर्स भी भेजती रही है। बहुत सारे देशों ने भेजा है अपने आर्मी वालों को मदद करने के लिए। Those are called UN peacekeeping missions. So there have been 71 peacekeeping missions in which Indian Army has participated. और क्या करती है वहां जाके? वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स रोड्स, ब्रिजेस, ये सब बनाना, बिजली पहुंचाना और इस तरह के काम करना। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, मेडिकल एड देती है लोगों को और मदद करती है। एक वॉलंटियर वर्कर फॉर द कॉज ऑफ बच्चों के लिए एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही है। तो देखो वो भी आर्मी के साथ में कोऑर्डिनेशन करके अपने बड़ा एरियो इन लोगों का नेशनल इंटरनेशनल लेवल में है। तो आप लोग को इधर करने से ना पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फिर शी विल बी कैरिंग बैक टू द मदर एरियो कि वहाँ ऐसा है ऐसा नहीं है, ये करने से अच्छा होगा, हमने ये एक्सपीरियंस किया है। आप लोग बोलते नहीं हो, हेजिटेट करते हो, तो हेजिटेट यू स्पीक आउट व्हाट यू फील। तो हमारे यहाँ तो हाँ आर्मी में बोलने से तो फिर लोकेशन टू लोकेशन अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रॉब्लम्स, लेकिन आपको बोलना तो चाहिए मैडम क्यों नहीं आर्मी में नहीं है, लेकिन हम लोग का तो अरुणाचल पुलिस में है, असम पुलिस में है, बटालियन में है, असम राइफल है। हम लोगों ने भी देखा है असम राइफल में भी लड़कियों बहुत लड़कियां हैं जो ड्यूटी करते हैं। उसको देख के पता नहीं आप लोग को खुशी होता है कि नहीं होता है, बट आई रियली फील प्राउड। अपने ज़माने में तो हम लोग को बोलने के लिए अधिकार नहीं, चुप लड़की बैठो घर में, लेकिन अभी फौजी ने एक बंदूक लेकर किसकी रक्षा करने के लिए, थोड़े ना उसकी माँ बाप को रक्षा करने, हमारे ऐसे लोगों को रक्षा करने के लिए। और कभी कभी जयरामपुर टाउन में भी हम लोग देखते हैं कहीं फायर एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करते हैं, सबसे पहले आपको याद रहता है कि पुलिस और फौजी लोग को असम राइफल को 3 घंटी बजा के वो लोग आते हैं, बचाव के काम करते हैं, है कि नहीं।
और कहीं कुछ हो गया, पूरा रात भर चलते हैं जाते हैं, दोनों टूट गया तो जाने के बाद कैसे पब्लिक को उठाना है, क्या करना है, रस्सी फेंक के पूरा कंधे में उठा के लेकर आते। These are small instances we could have shared with. और अभी आप लोगों को चाहिए ऐसे मैडम लोग सारे लोग बाहर से आए, आप लोगों से बातचीत ऐसे करें, आपको कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा? तो बोलना है मैडम, बाद में भी आइएगा। हाँ, बाद में आइए। और आपने जितना भी एग्जाम्पल दिया है, उपदेश दिया है, जो भी सुझाव दिया, हम लोग विल ट्राई टू कैरी इट आउट एंड ट्रांसलेट इट इनटू प्रैक्टिस, है कि नहीं? मेरे बाल का मास्टर पूरा जीवन ने ये इमरजेंसी पर्पस के लिए वो कर दिया। तो अब आपको पूछे तब तो आपका क्लास कहाँ होते हैं? क्लास के लिए ये वाला क्लास के लिए फिर हम लोगों ने वो वाला घर में अभी ले कर ये दो पार्ट में इसमें जो भी है या आगे होना है ताकि वो रात को किसी से भी ना भाग चले, क्योंकि हम लोग सिक्योरिटी फेंसिंग नहीं है। मैंने तो उसी से मैनेज कर रहे हैं। और ये वाला पहाड़ हमने बस्ती वालों से मांगा, ये पहाड़ अभी भी ये हमें दिए गए हैं ये जमीन। तो ये वाला इससे फिर फेंसिंग वगैरह नहीं है, इसलिए हम लोग जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं। और एक कपड़ा सूखा निकल ये वाला रास्ता जाते हैं वहाँ तक। तो एक छोटा सा एक पिगरी मतलब 2-3 के बच्चे इतनी बच्चे अपना सब बुक्स वगैरह और अरेंज करते हैं। हम भी गवर्नमेंट स्कूल से भी पढ़े हैं, लेकिन मैडम उसी जमाने में हॉस्टल में किताब ले जाने का अलाउड था विद 1 टेबल एंड 1 स्टूल, लेकिन अभी वी आर नॉट अलाउड। आपको इधर में पढ़ना है, स्टडी और इधर में करना है। अभी 1:30 लंच ब्रेक हो जाएगा, देन अप टू 2:30 टीचर उसी में कोई रिवॉल्व कर लेगा, हम क्यों करें? तब तो नहीं होना था। आपका एटीट्यूड जो रहेगा वर्कर्स वही हो जाएगा। हाँ, वास्तव में तो डायरेक्टर जो होगा वर्कर वैसे हो। मैं अगर नमगोई में ड्रग्स डिडिक्शन को अटेंशन ड्रॉ करने के लिए संडे तो हम लोग इसी से शुरू करके फिर अवेयरनेस फिर टेस्टिंग वगैरह भी करवाए हैं। मतलब सब अट्रैक्टिव पॉइंट देने से ना आएंगे। और ये वाला ये टीचर्स हमारे और ये वाला हम सोच रहे हैं कि बाद में अगर हम प्रपोजल देंगे तो ये नेपाली है, नॉन ट्राइबल नेपाली है, 2-3 लोकल, बाकी सब लोग हैं, एक बंगाली है, ये असमीज है। तो ये मैडम ये लोग भी हम बार बार आते रहेंगे।